Hi everyone, welcome to the class. Good morning everybody. Good morning. Welcome to the class. क्लास में आप सभी का स्वागत है. Good morning everyone. Good morning. Good morning everybody. Welcome to the class. Please let me know if I'm audible and visible. अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज मुझे बताएं ताकि हम शुरू कर सकें क्लास को. Okay. Everything is audio, video, everything is clear. All right. So, welcome to this class on Governor Generals, the most important Governor Generals and Viceroys. We are going to study that today. आज हम काफी important Governor Generals और Viceroys को पढ़ने वाले हैं. And at the end of the class, we are going to solve 10 prelims based questions also. Class के end में हम 10 prelims based questions भी solve करेंगे. So pay utmost attention to the class. Class में आपको बिल्कुल utmost attention के साथ बैठना है, ठीक है? And also you can make simultaneous notes with the class. आप class के साथ साथ simultaneous notes भी बना सकते हो. Okay, these notes are going to help you a lot in your revision. And I am also going to upload the notes on my Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. Clear? So before we start this session start करने से पहले, here's a small announcement for all of you. आप लोगों के लिए एक छोटी सी announcement है. As you can see that Unacademy has launched Ultimate GS batches, right? And these batches are in bilingual language also, English also, and Hindi language also. So these batches will be in various languages, English, Hindi, and bilingual. And these are starting from 28th of December 2020. And I am also going to take the history lessons in these batches. So you can subscribe to these batches. These are for 6 months also. If you are giving your exam in 2021, if you are giving your exam in 2022, so 1 year batch has also been launched. If you are giving your exam in 2023, 2 year batch has also been launched, and these are going to start from 28th of December. Okay, so you can use this code Sharma20 or Arpita10. कोई भी इनमें से कोड यूज कर सकते हो to get 10% off on your Unacademy Plus subscription. These are the codes which are going to help you to avail 10% discount on your Plus subscription. Okay. So the link is also given below in the description box. You can subscribe to Unacademy Plus if you are enjoying the demo sessions. अगर आपको लगता है कि demo sessions अच्छे हैं, इसी तरीके से सही पढ़ाया जा रहा है, तो आप अपनी preparation के subscription ले सकते हो Unacademy पर. ठीक है? Point clear? So this is a small announcement for all of you. And also if you wish to take the Iconic subscription wherein you will be allotted a personal coach. Iconic subscription में आपको personal coach allot किया जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हो. Again Sharma20 कोड है जिसको यूज करके आप easily 10% डिस्काउंट ले सकते हो. ठीक है? So let's start the session. Session शुरू करते हैं. Now yesterday we studied about the 18th century India. अभी कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 18th century India पढ़ा था. 18th century India means the India which was politically fragmented. वो भारत जो कि politically fragment हो रहा था, टूट रहा था. ठीक है? Today then after the political fragmentation happened, we saw the advent of Europeans. जैसे ही political fragmentation होता है, इंडिया में यूरोपियंस का आगमन होता है. यूरोपियंस दे स्टार्ट कमिंग इनटू इंडिया, वेदर इट बी पोर्टुगीज, वेदर इट बी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स और डच और डेन्स एटसेट्रा. ठीक है? एंड व्हेन द यूरोपियंस केम, द फोरमोस्ट ऑफ देम, द मोस्ट यू कैन से क्लेवर ऑफ देम वाज द ब्रिटिशर्स. सबसे ज्यादा उनमें से पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग ब्रिटिशर्स थे. एंड ब्रिटिशर्स दे वर एबल टू कोलोनाइज इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. काफी ज्यादा समय तक ब्रिटिशर्स ने भारत को कोलोनाइज कर लिया था. सक्सेसफुली दे हैड कोलोनाइज्ड इंडिया. सो व्हेन दे कोलोनाइज्ड इंडिया, when the Britishers they colonized India, what happened? They appointed their representatives in India who would work on their behalf. ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया में जो काम करेंगे उनको यहाँ नियुक्त किया गया. Those representatives who will work on behalf of India were appointed. They were known as Governor Generals. क्या कहा जाता था? Governor Generals कहा जाता था. ठीक है? So create a flow chart. मेरे साथ साथ एक flow chart create कर लीजिए. I am going to create a flow chart. You can also create the same. ठीक है?
So when we talk about coming of Europeans, advent of Europeans की जब हम बात करते हैं, this class is going to be in English and Hindi. That means first I'll explain in English and then I'll translate it back into Hindi. Okay. So when we talk about the advent of Europeans, we know that Britishers successfully eliminated their competition from India. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बहुत सक्सेसफुली इंडिया से कंपटीशन को हटा दिया था. द पोर्टुगीज, द फ्रेंच, द डेन्स, डच, एवरीबडी वाज एलिमिनेटेड एंड ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग देयर रूल इन इंडिया. दे वर सक्सेसफुल इन सेंडिंग देयर representatives in India. So the representatives that they appointed were known as governor generals. जो representatives इन्होंने appoint किए उनको बोलते थे governor generals. But then under the governor general's ruling period only, revolt of 1857 took place. अब गवर्नर जनरल के रूलिंग पीरियड के टाइम पर ही 1857 का रिवोल्ट हुआ. एंड व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस, दैट वी विल स्टडी इन द फर्दर क्लासेस, डोंट वरी, आने वाली क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे. देयर आर 12 क्लासेस दैट आई एम गोइंग टू टेक ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, फॉर फ्री. तो 12 क्लासेस होंगी जिसमें आपका प्रीलिम्स का कोर्स कवर हो जाएगा. आई विल बी कवरिंग योर प्रीलिम्स कोर्स. ओके. So revolt of 1857, it showed, you can say that it showed that at that time the management of Britishers was very weak. ठीक है, तो मैनेजमेंट जो था ब्रिटिशर्स का वो काफी ज्यादा वीक था. ये पता चला हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम से. ठीक है. So after that the Act of Good Government was passed by the British government. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट पास किया. Just give me a second. ठीक है, तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट वाई इट वॉज पास्ड टू मेक श्योर दैट इन फ्यूचर दीज काइंड ऑफ रिवोल्ट्स विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है, तो 1858 से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए इंडिया में. फ्रॉम 1858 द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन इंडिया एंड वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स in 1858 was that now the governor general's position will be deleted. अब गवर्नर जनरल की पोजीशन डिलीट कर दी जाएगी. ये इनमें से एक पॉइंट था इस एक्ट का. एंड नाउ इन प्लेस ऑफ गवर्नर जनरल वी विल हैव वाइस रॉयज. अब गवर्नर जनरल की जगह पर हमारे पास क्या होंगे? वाइस रॉयज होंगे. ओनली द नेम वॉज चेंज्ड, नथिंग एल्स चेंज्ड. ओके, द पोजीशन, द पावर ऑफ वाइस रॉय वॉज सेम ओनली. ओके, ओनली द नेम वॉज चेंज्ड. सिर्फ नामकरण हो गया. ठीक है, नया नाम रख दिया, इंसान तो वही था. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? सो दिस वॉज द कनिंगनेस ऑफ द ब्रिटिशर्स टू मेक श्योर दैट इन फ्यूचर पीपल वुड नॉट थिंक दैट ब्रिटिशर्स आर अगेंस्ट देम. व्हाट दे डिड, दे जस्ट पास्ड ऑन अ एक्ट and they just said that now there will be no governor general who can exploit you, there will be viceroy who will help you. This was all false pretext. ठीक है, ये सब कुछ झूठा था. ठीक है, इन्होंने बस पागल बनाने की कोशिश की और कुछ हद तक, कुछ महीनों तक हम पागल बनते भी गए. बट देन द वेव ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड फ्रॉम 1858 itself, because some of the intellectuals in India, they started noticing that Britishers are bringing no change. They are just changing the names. The power, position, the job of the person was same. गवर्नर जनरल हो या वाइस रॉय, एक ही चीज है. लोगों को समझ आने लगा. तभी 1858 से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई. ठीक है, 1858 के बाद, और 1858 से ही वेव शुरू हो गई थी जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टैब्लिशमेंट के साथ ही जाकर एंड हुई. ठीक है, अब यहाँ पर एंड हुई मतलब नेशनलिज्म की वेव खत्म नहीं हुई. एंड मतलब नेशनलिज्म की वेव जो है उसको नया स्वरूप मिल गया. इट गॉट इट्स न्यू फॉर्म फ्रॉम 1885 itself. Now our nationalism wave, nationalism emotion got a new structure, got a new platform. Point is clear? यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से बताएं. If the points are clear, please let me know. Okay? Now the one thing that in mains can be asked, एक चीज जो मेंस में पूछी जा सकती है वो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय. अब दिस कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू ऑल्सो. अब ये तो अगर आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछा जा सके. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल. तो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के बीच का ना डिफरेंस समझ लेते हैं. सो आई होप यू ऑल हैव मेड दीज डायग्राम्स. जो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया है सभी ने बना लिया. Now, when we talk about the difference between the Governor General and the Viceroy, the major difference is, see, Governor General and Viceroys, they were the main administrative
कॉक्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉक्स मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ये लोग क्या थे? ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स थे. दे वर ट्राइंग टू एडमिनिस्टर इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, क्वीन के बिहाफ पे ये रूल करने की कोशिश कर रहे थे. एंड दे सॉ दैट द जूल ऑफ द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर शुड बी मेड इंटैक्ट. तो आप बेसिकली कह सकते हो कि इंडिया जो था वन ऑफ द वास्ट एंड वास्टली रिच इकोनॉमी था और कॉलोनी था ब्रिटिश इंडिया का. इंडिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट वास्टली रिच कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश इंडिया. एंड वाइसरॉयज एंड गवर्नर जनरल हु केम फ्रॉम ब्रिटेन रिप्रेजेंटिंग देयर गवर्नमेंट, दे वर लाइक द जूल इन द क्राउन. यानी कि जो महारानी थी उसके ताज का हीरा जैसे थे ये गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय. They were the most important people when it came to administration of British India. British India के administration में इनका रोल काफी important था. ठीक है, so let us understand the basic difference between the two. दोनों के बीच का एक basic difference समझ लेते हैं. The post of Governor General of India was created by passing which act? Passing the Charter Act of 1833. Please write it down. This is important for prelims. मैं आपको स्टार बनाती रहूंगी जो जो पॉइंट आपके prelims के लिए important है. I'll create a star. Okay. So William Bentinck, he became the first Governor General. Again, very important point for prelims. I hope you are noting it down. I hope आप इसको अच्छे से नोट कर रहे हो. ठीक है. So Governor General की जब हम बात करते हैं, Charter Act of 1833 was passed and William Bentinck became the first Governor General. But I told you, मैंने आपको बताया था कि after the revolt of 1857, the Government of India Act 1858 was passed, which was also known as, क्या बोलते थे इसको? इसका दूसरा नाम क्या था? जल्दी से बताएं. What was its other name? Yes, Good Government Act. इसका दूसरा नाम था Good Government Act. Okay, and it was a part of the 1858 administrative reforms of British government. So after the passing of Good Government of India Act 1858, Viceroy's position was created. Viceroy की जो position थी उसको create किया गया. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. अब पहले वाइसरॉय कौन थे? कौन बताएगा मुझे? हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. द फर्स्ट वाइसरॉय आई एम आस्किंग. कमेंट सेक्शन में बताएं. So it was Lord Canning who was the first viceroy, but he remained the viceroy for a short period of time. बहुत ही कम period of time के लिए ये viceroy बन के रहे. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर सभी को? So this is one important point that you need to remember, the acts because of which the positions were created. आपको वो acts याद रखने हैं जिसके वजह से ये positions create हुई हैं. Now the post of Governor General was mainly for administrative purposes and reported to the Court of Directors of East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी में दो कोर्ट्स बनाए गए थे. देयर वर टू कोर्ट्स व्हिच वर फॉर्म्ड. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC. बोर्ड ऑफ कंट्रोल यूज्ड टू लुक आफ्टर द कमर्शियल एक्टिविटीज. ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उनको देखता था. एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यूज्ड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज. इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है उन पे नजर रखता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मिलिट्री एटसेट्रा. So here Governor General used to report to Court of Directors because Governor General is created, this position was created for administration ना. ये position तो आपकी administration के लिए create हुई थी, तो इसलिए Court of Directors को सारी reporting दिया करते थे. Point clear हो रहा है? And Court of Directors used to report to, जल्दी से बताएं, Court of Directors किसको report करते थे? They used to report to the Queen. Very good शशांक. ये Queen को report किया करते थे. पॉइंट क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. इन द वाइसरॉय आफ्टर 1858 द रोल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वन. नाउ आई टोल्ड यू ओनली द नेम वाज चेंज्ड, पोजीशन एंड पावर वर द सेम. पागल बनाने वाली बात थी, बस नाम चेंज किया और बोला कि हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ला रहे हैं. Just after changing the name of Governor General, they said that we are bringing the administrative reforms. ठीक है, हम सिर्फ administrative reforms लेकर आ रहे हैं. But in reality, these were not administrative reforms. Reality में ये administrative reforms नहीं थे. They were just plans to befool us. ठीक है, to calm us down. Okay, BOC means Board of Control. COD means Court of Director. So over here we'll see that position of or role of Viceroy and Governor General was same only. ठीक है, बट द चेंज वॉज, जो छोटा सा चेंज था वो ये था, नाउ द वाइसरॉय विल नॉट report to court of directors. There is no court of directors now. After 1858's administrative reforms, these were eliminated. ठीक है, now they had to report directly to the queen. अब तो इनको directly queen को report करना है. ठीक है, now you will directly report to the queen.
ठीक है. So the difference is Governor General used to report to Court of Directors. Now Viceroy used to report to the Queen directly. Then Governor General of India was selected by the Court of Directors who were in charge. I told you Court of Directors administrative activities था इनका काम. ठीक है. तो इसीलिए Court of Directors ही Governor General को अपॉइंट करते थे. But Viceroy was appointed by the Queen, the British Parliament. इनको कौन अपॉइंट करता था? They were appointed by the British Parliament. अब ये जो टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. दिस टॉपिक दैट आई एम एक्सप्लेनिंग, इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव. सो आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर नोटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. Now the time period of Governor General in India was 1833 to 1858. Who will tell me in the comment section why it started from 1833? Okay, yes, very good, excellent Simmi, Vandana, very good, Abhijit, Sana, Will, Abhishek, very good. Charter Act, yes, because Governor General's position was established by Charter Act of India 1833. ठीक है, and why it lasted till 1858? 1858 तक ही क्यों चला? जल्दी से बताओ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करो. Yes, Vandana, Ankita, very good. Because now after 1857's revolt, the old working of in British India was eliminated. 1857 के रिवोल्ट के बाद administrative reforms आए थे. They were administrative reforms. That is why it lasted till 1858 only. And the time period of Viceroy's position was 1858 to 1948 till partition happened. यहाँ तक तो बहुत easy है ना? Now William Bentinck was the first Governor General. ठीक है, एंड हियर लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय. ये दूसरा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल. तो सी राजगोपालाचारी, आपने पढ़ा होगा CR प्लान के बारे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. वी विल स्टडी दिस once we start with nationalist movements ना, we will study about CR plan also. जब हम nationalist movement start करेंगे ना, हम CR plan भी पढ़ेंगे, don't worry. So last governor general C राजगोपालाचारी and last viceroy Lord Mountbatten, जिन्होंने Mountbatten plan तैयार किया था partition का. He created the Mountbatten plan. Okay, so first and last आपको याद रखने हैं. ठीक है, so इतना सबको समझ आ गया हो तो जल्दी से बताएं. गवर्नर जनरल से स्टार्ट करें. नाउ these topics that I am going to discuss, the different important governor general. देखो, there were many governor generals, ठीक है, but we do not have to study all of them. बच्चे डर जाते हैं, मैम सारे गवर्नर जनरल याद करने हैं. नहीं बेटा नहीं, only those governor generals you have to remember which are important from the perspective of prelims and mains, जिससे बार बार questions आए हैं. Who have contributed significantly in the British India during the partition, only those you have to remember. ठीक है, सो लॉर्ड हैस्टिंग्स की बात करते हैं 1813 to 1823. नाउ द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल स्टार्टेड फ्रॉम 1833 ओनली. ठीक है, पोजीशन 1833 से स्टार्ट हुआ, बट दैट डज नॉट मीन दैट अनऑफिशियली देयर वाज नो गवर्नर जनरल इन इंडिया बिफोर 1833. इसका मतलब ये नहीं है कि 1833 से पहले अनऑफिशियली कोई भी गवर्नर जनरल नहीं था. नो, दिस पोजीशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम 1833, बट गवर्नर जनरल एग्जिस्टेड बिफोर 1833 आल्सो. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्लो चार्ट. ठीक है, हियर आई विल राइट द गवर्नर जनरल्स. यहाँ पर मैं गवर्नर जनरल्स अलॉन्ग विद द टाइम पीरियड लिखूंगी. एंड हियर आई विल राइट इंपॉर्टेंट इवेंट्स और रिफॉर्म्स. कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स उनके टाइम पीरियड में हुए और क्या रिफॉर्म्स वो लेकर आए. सो आई होप दैट यू आर मेकिंग दिस टेबल विद मी. उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये टेबल मेरे साथ बना रहे हो. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वॉज, पहला इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है आपके बंगाल में. ठीक है, और इंडिया, बिकॉज मेन एरिया वॉज, रूलिंग एरिया वॉज बंगाल ओनली. ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वॉरेन हेस्टिंग्स. सबसे पहले हम वॉरेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट करते हैं. एंड ओवर हियर टाइम पीरियड आप लिख सकते हो, इन इंडिया ही केम एट 1773. तो इंडिया में ये 1773 में आए एंड टिल 1785 इन बंगाल ही वॉज कंट्रोलिंग. 1785 तक बंगाल में he was having his control. The most important events that took place in his time period were, first is the Regulating Act. This you might have studied in the first chapter of M. Lakshmikant. M. Lakshmikant Indian Polity के पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. Regulating Act of
1773, wherein Supreme Court was also established. ठीक है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज abolished. ठीक है, तो पहला इवेंट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. Then second was he was the first governor general of not India, of Bengal. ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है. ठीक है. Third important point is that his time period saw the end of dual government of administration. ठीक है, dual government और you can say dual system. यहाँ पर आप कह सकते हो dual system of administration. Direct control will be by the Governor General only. The Prince will not be included. Prince means the Bengal's Nawab will not be included in administration. अब यहाँ पर दो लोग administration नहीं करेंगे, Britishers and the Nawab. No, only the Britishers are going to administer. Nawab will have zero control. अब नवाब का कंट्रोल नहीं होगा बंगाल पर. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन वी सॉ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेयर एट कैलकटा. कहां पर स्टैब्लिश हुआ सुप्रीम कोर्ट? कैलकटा में स्टैब्लिश हुआ. ठीक है, वी सॉ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकटा. एंड ही ऑल्सो रोट, write it down, this is very important for prelims, he wrote the introduction in the first English translation of Gita. You must have heard about भगवद गीता. आप लोगों ने भगवद गीता का नाम तो सुना होगा. ठीक है, तो इन्होंने गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंट्रोडक्शन लिखा था. जो प्रीफेस होता है, स्टार्टिंग चैप्टर होता है, वो इन्होंने लिखा था. ठीक है, पॉइंट क्लियर. एंड ही ऑल्सो फाउंडेड, राइट इट डाउन, he also founded the मदरसा आलिया. ठीक है, at Calcutta. तो मदरसा आपको पता है. ठीक है, so मदरसा was also established educational purpose के लिए, इस्लामिक एजुकेशन पर्पस के लिए मदरसा को establish किया जाता है. So he also founded मदरसा आलिया at Calcutta. Now these are the points that you need to remember from prelims perspective. ये points आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में prelims के perspective से याद रखना है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओके, इफ द पॉइंट्स आर क्लियर प्लीज लेट मी नो. क्लियर, ठीक है. तो यहाँ पर पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में. आई होप यू हैव नोटेड डाउन दी पॉइंट्स. आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं. तो वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. And also in his time period he became the British resident. Now this is very important to understand what is the meaning of the term resident. ये समझना काफी जरूरी है कि resident शब्द का मतलब क्या होता है. So over here resident means, इसका मतलब क्या होता है? The agent of Britishers. ठीक है, ब्रिटिशर्स का जो एजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिडेंट बोलते हैं. So Britishers they established this residentship. इन्होंने ना रेजिडेंटशिप स्टैब्लिश किया. एंड अकॉर्डिंग टू दिस रेजिडेंटशिप द एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स वर सेंट टू इंडिया इन द कोर्ट्स ऑफ वेरियस रूलर्स इन ऑर्डर टू मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस, इन ऑर्डर टू कीप एन आई ऑन देयर एक्टिविटीज, ताकि नजर रखी जा सके कि भाई इंडिया के नवाब और रूलर सही काम तो कर रहे हैं या नहीं. आर दे प्लानिंग समथिंग अगेंस्ट अस? आर दे प्लानिंग टू रिमूव अस? ठीक है, सो टू कीप एन आई ओवर ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज ब्रिटिश रेजिडेंट्स वर सेंट. So he became the British resident at Murshidabad, which was the capital of Bengal. After Mir Jafar was installed as the Nawab after the Battle of Plassey. So Mir Jafar was supported by the Britishers in the Battle of Plassey. We will study this in the next class. Now he also passed Regulating Act of 1773. He supported Sir William Jones in formation of Asiatic Society of Bengal in 1785. Question on Asiatic Society was asked in 2017 and 2018 prelims. Prelims में question पूछा गया है Asiatic Society के ऊपर, तो आपको ये चीजें याद रखनी है. You have to remember these points. Who established the Asiatic Society? It was Sir William Jones. In which year? In 1785. In which place? In Bengal. ठीक है, and who supported him? Lord Hastings supported him in the administrative area. पॉइंट क्लियर? यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर है तो फटाफट से बताएं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Now we have said that he abolished the dual system. हमने ये पढ़ा है कि इन्होंने dual system जो है वो abolish कर दिया. So what was this dual system? Dual system क्या था ये समझते हैं. So Hastings he abolished the dual system that had been established by Robert Clive. Another important point that you need to remember, who established the dual system of government? It was Robert Clive.
एंड व्हाट हैपेंड इन द ड्यूअल सिस्टम, अब इस ड्यूअल सिस्टम में होता क्या था, तो इन दिस ड्यूअल सिस्टम दी कंपनी हैड दीवानी राइट्स। ड्यूअल सिस्टम में क्या था कि कंपनी के पास ना दीवानी राइट्स थी, ठीक है। व्हाट आर दीवानी राइट्स, राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट। एंड द निजाम और इंडियन चीफ्स हैड द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, सो देयर वर टू सिस्टम्स ऑफ कंट्रोलिंग इंडिया। दो सिस्टम्स हो गए ना कंट्रोल करने के भारत को, एक तो हो गया सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड अनदर इज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग, ठीक है। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, इसको रॉबर्ट क्लाइव ने एस्टैब्लिश किया था। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द दीवानी राइट्स एंड द नवाब हैड द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, एंड दिस वाज एलिमिनेटेड बाय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने एलिमिनेट किया था, ठीक है। दिस सिस्टम वाज एलिमिनेटेड बाय Lord Warren Hastings. The Nawab's annual allowance of rupees 32 lakh was reduced to rupees 16 lakh. Now all the powers were in the hand of British government. चाहे वो दीवानी कलेक्ट करने की पावर हो, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर हो, सारी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है। एंड नवाब की जो एनुअल अलाउंस है, द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू गिव देम एनुअल मंथली अलाउंस, खर्चा पानी निकालने के लिए। इट वाज सॉरी नॉट मंथली, इट वाज ईयरली अलाउंस, एंड ईयरली अलाउंस वाज 32 लाख, बट ब्रिटिशर्स लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ही रिड्यूस्ड इट, हाफ रिड्यूस कर दिया, 16 लाख कर दिया, कि अब सालाना आपको सिर्फ 16 लाख मिलेंगे अपना खर्चा पानी निकालने के लिए। यू विल गेट ईयरली 16 लाख ओनली टू टेक केयर ऑफ योर expenses. And annual tribute paid to Mughal emperor was also stopped. Now Mughal emperors were the pensioners. अब इनको ये annual जो सालाना tribute दी जाती थी states के द्वारा वो खत्म हो जाएगी. They are not going to receive any tribute. The tribute will go to the British government. ठीक है, point clear? Now looking at the revenue reforms. Revenue reforms की तरफ देखते हैं. So for the revenue collection, when we talk about revenue collection, the board of revenue was set up at Calcutta, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, इट वाज सेट अप एट कैलकाटा एंड ट्रेजरी वाज मूव्ड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा। कैलकाटा बिकेम बंगाल्स कैपिटल इन 1772, ओके। सो व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू कलेक्शन, वी हैड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसको लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने कैलकाटा में सेटअप किया था, एंड हियर बंगाल बिकेम Calcutta became the capital in 1772. Now British collectors were appointed for each district and accountant general was also appointed. तो आप देख सकते हो what he did, he you can say refined the revenue departments. इन्होंने revenue department को ना refine कर दिया था, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। He was working on amending the revenue department, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। He also raised rent on land. Now, what were the judicial reforms that he brought? So, judicial powers of zamindars were abolished. Why? Judicial power zamindar की क्यों abolish की? Because now the judicial power was in the hands of Britishers. ठीक है, अब जो जुडिशियल पावर है वो किसके हाथ में हो जाएगी? ब्रिटिशर्स के हाथ में हो जाएगी। नाउ ऑल द जजमेंट्स विल बी टेकन बाय ब्रिटिशर्स ओनली, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एस्टैब्लिश कर दिया गया था, एंड द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। सो यू कैन से दैट जुडिशरी आल्सो वाज रीफॉर्म्ड, जुडिशरी को भी रीस्टैब्लिश, रीस्ट्रक्चर, रीफॉर्म किया गया, ठीक है। इफ द पॉइंट इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो. Now, the very important point over here is that the criminal court was to have an Indian judge. जो आपका criminal court होगा ना, वहां पर एक Indian judge जरूर बैठा होगा, so that Indians will not think that partiality is being done to us. ताकि Indians को ऐसा न लगे कि भाई हमारे साथ partiality हो रही है. No Indian judge is sitting, so they can make out any judgment. कोई भी judgment कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। Indian judge भी बैठा होता था, but that Indian judge again was under the control of Britishers only. वो Indian judge अपने decision थोड़ी ले पाता था. He was also under the control of, the Britishers. Point clear हो रहा है यहाँ तक? And he also abolished the system of dastaks. Dastaks means the free trading rights which were given. ठीक है, जो आपके trading rights थे ना, दस्तक वर्दी trading rights, उनको भी हटा दिया गया, ठीक है, रिमूव कर दिया गया। Why? Because some of the company officials were doing private trade. कुछ कंपनी ऑफिशियल्स ऐसे थे जो अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे दस्तक का यूज करके, ठीक है। दे वर डूइंग देयर ओन प्राइवेट ट्रेड, मेकिंग मनी आउट एंड विच दे वर नॉट गिविंग दैट मनी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो फॉर दैट, ठीक है, दे रिमूव्ड, इन्होंने क्या किया उसके लिए? रिमूव कर दिया दस्तक को, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? तो जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात पढ़ते हैं, ठीक है।
लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेट्स स्टडी दैट। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, इन्होंने सोसाइटी के लिए काफी किया है। ही हैज डन अ लॉट फॉर सोसाइटी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट, इनके साथ स्टार्ट करने वाले हैं हम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉर्ड विलियम बेंटिक, he came after the Charter Act, write it down, Charter Act of 1833 was passed। जब 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ था, तब हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक हमें मिले, ठीक है। एंड ही वर्कड फॉर द सोसाइटी, हाउ, बाय बैनिंग द सती ट्रेडिशन। इन्होंने सती ट्रेडिशन को अबॉलिश करने के लिए 1829 से ही कोशिशें करनी शुरू कर दी थी। He started working towards the upliftment of society. How? By abolishing sati, by working against sati pratha, by making people aware that this tradition is outdated, this tradition is stupid. ठीक है, ये गलत ट्रेडिशन है, ये आपको नहीं करना चाहिए, this is wrong, this is outright, playing with the modesty of a women, ठीक है, you are snatching away the rights of the women. Also, he passed a resolution, write it down, resolution of 1835, and he brought education reforms. Now, why did he brought education reforms? Because at that time, the girl child was not allowed to study. उस टाइम पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था. So, he brought resolution of 1835, education reforms and introduction of English as the official language. So Lord William Bentinck is responsible for bringing in English as an official language in India. इन्होंने English को एक official language करार करने की बात कही, ठीक है। And also he snatched away the territory of Mysore. Mysore को इन्होंने annex किया 1831 में. And he annexed, write it down, Central India, the territories in Central India in 1831 again, ठीक है। He annexed Coorg also, इन्होंने कूर्ग को भी साउथ में एनेक्स किया again in 1831. So it is said that mostly he did the work in the social field. इन्होंने सबसे ज्यादा काम सोशल फील्ड में ही किया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। The appointment of Lord William Bentinck as Governor General of India, it started the dawn of new era in the annals of British rule in India. Yeah, why new era? Because he made significant changes. He brought significant reforms in the education era. And when we all know, when education undergoes change, the entire society undergoes a change. जब एजुकेशन में आप एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाते हो, तो पूरी सोसाइटी उसके साथ रिफॉर्म होती है, चेंज होती है, ठीक है। दैट इज वाई ही इज नोन एज the person who started the new era of British rule in India. He continued as Governor General from 1828 till 1835, and he was a man of peace, discipline and economy. That is why he used to work for the upliftment of society. इसलिए इनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो था वो सोसाइटी की तरफ था, कि मैं कैसे भी सोसाइटी को अपलिफ्ट करूं, सोसाइटी को ऊपर उठाऊं, ठीक है। So he was a great reformer because he worked against the sati pratha. He was the first Governor General who was sympathetic towards Indian people. He tried to remove difficulties of the Indians by reforming education, by abolishing sati pratha, ठीक है, by also bringing in English as a medium of communication, teaching people how to speak in English so that they can understand the British policies, they can understand what the Britishers are trying to do in India. English लोगों को पता नहीं थी, तो Britishers कुछ भी बोल जाते थे, उसको कुछ भी इंटरप्रेट हो जाता था। अब जब इंग्लिश लोग इंडियंस को भी पता होगी, तो वो आराम से अच्छे से ब्रिटिशर्स को समझ पाएंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये जान पाएंगे, ठीक है। दे विल नॉट बी इन यू कैन से ब्लाइंडनेस, वो अंधेरे में अंधकार में नहीं रहेंगे, उन्हें पता होगा ब्रिटिशर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। So after Cornwallis, it was Governor General Lord William Bentinck who paid attention to any new administrative reform which could change the society in India. ठीक है, and he also started to bring out policies to establish closer contact between ruler and ruled. Ruler and ruled means, ruler means the Britishers, ruled means the citizens. जिन पे रूल किया जा रहा है वो है सिटीजन्स, जो रूल कर रहा है वो रूलर है। तो दोनों के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने के लिए इन्होंने नए पॉलिसीज निकालने शुरू किए। ही ऑल्सो स्टार्टेड इंडियनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज में इंग्लिश एज लैंग्वेज लेकर आए ताकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को समझ सकें,
एंड ऑल्सो इंटरप्रेटर्स वर अपॉइंटेड, इंटरप्रेटर्स को भी अपॉइंट किया गया सो दैट वट एवर द गवर्नमेंट ऑफिशियल इज सेइंग इट कैन बी इंटरप्रेटेड, इट कैन बी ट्रांसलेटेड फॉर द इंडियन सिटीजन, ताकि इंडियन सिटीजन्स के लिए ट्रांसलेट करके ऑर्डर्स को बताया जा सके सो दैट द इंडियन सिटीजन्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट ऑर्डर्स आर बीइंग पास्ड, ठीक है। ऑल्सो ही इंट्रोड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में इन्होंने न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स लेकर आए विच वॉज अ सेमी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, टू इंकरेज टेनेंट्स टू मेक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनेबल द स्टेट टू गेट सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑल्सो, ताकि जो टेनेंट्स हैं यानी कि जो रेंट पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भी कंडीशन को सुधारा जा सके, उनके साथ भी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कल्टीवेटर्स के साथ भी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको भी उनकी लॉयल्टी मिलती रहे। एंड द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल अंडर हिज टाइम पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 20 डिविजन्स। व्हाई सो मेनी डिविजन्स? ऐसा क्यों किया? बंगाल को 20 डिवीजन में बांटा। व्हाई? फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट को एफिशिएंटली एडमिनिस्टर किया जा सके, ठीक है। एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो आप बनने वाले हो आगे जाकर डीएम, हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी था और जज भी था, सो दैट नो पार्शियलिटी इज बीइंग मेटेड टू द पीपल ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ किसी तरीके की पार्शियलिटी ना हो। सो व्हेन वी लुक एट द जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ बेंटिक, first reform was that the provincial courts of appeal and had been largely responsible for huge areas of cases. Areas means outstanding cases, pending cases. Areas का मतलब क्या होता है? Pending cases, जो कि आज भी हो रहा है. It is happening right now also. ठीक है, द केसेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट, हमें पता है कि कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े हैं। एट दैट टाइम ऑल्सो द प्रोविंशियल कोर्ट्स वर डीलिंग विद ह्यूज केसेस विच वर पेंडिंग, जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे। So the judicial procedure followed in these courts often resulted in delays, because of which the cases were solved at a delay. जितने भी नए केस आते थे बहुत टाइम लगता था उनको सॉल्व करने में। So Bentinck what he did, he straight away abolished these courts. उन्होंने provincial courts को ही abolish कर दिया, ठीक है। ना रहेगी आपकी प्रॉब्लम और ना रहेगा उसके साथ एसोसिएटेड चैलेंज, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इधर क्या था कि बेंटिक ही अबॉलिश प्रोविंशियल कोर्ट्स। नाउ यू विल बी वंडरिंग कि मैम प्रोविंशियल कोर्ट्स हैव बीन अबॉलिश्ड, नाउ हु विल लिसन टू द प्रोविंशियल केसेस? अब प्रोविंसेस के जो भी केस है उनको कौन सुनेगा, ठीक है। सो फॉर दैट ही एस्टैब्लिश्ड डिफरेंट ग्रेड ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, एट ऑल लेवल्स, चाहे वो प्रोविंसेस हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो सेंटर हो, ठीक है। आप इन कोर्ट्स के पास अपना केस लेकर आ सकते हो, इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम प्रोविंसेस और वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस। These different grade of courts were established wherein people can come from any area of the state. आप स्टेट के किसी भी एरिया में रहते हो, आप यहाँ आ सकते हो। And these different grade of courts handled different cases. First was criminal court, सेकेंड सिविल कोर्ट हो गया, फिर आपका मिसलेनियस केसेस हो गए, ठीक है। मिसलेनियस केसेस आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। देयर वाज फैमिली डिस्प्यूट कोर्ट ऑल्सो, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जमीन को लेके कोई झगड़ा हो रहा है, यू कैन कम टू फैमिली डिस्प्यूट कोर्ट ऑल्सो, ठीक है। सो देयर वर डिफरेंट कोर्ट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस, देयर वाज नो वन सिंगल कोर्ट, डिफरेंट कोर्ट फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। फॉर द इट बिकेम इजी फॉर दोज कोर्ट्स टू सॉल्व द इश्यूज एंड टू वाइप ऑफ द केसेस, जल्दी जल्दी केसेस को सुलझाने के लिए इन कोर्ट्स ने बहुत हेल्प करी, ठीक है। नाउ ही एस्टैब्लिश्ड डिफरेंट ग्रेड ऑफ कोर्ट्स, आई टोल्ड यू, एंड वी हैड अ सुप्रीम कोर्ट इन आगरा, ठीक है। अब सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जो थे वो भी तैयार किए गए और सुप्रीम कोर्ट भी तैयार किया गया। इफ यू हैव एनी इश्यूज विद द जजमेंट ऑफ दीज कोर्ट्स, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर इन कोर्ट्स के द्वारा कोई जजमेंट आपको अच्छी नहीं लगी है, आप पिटीशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। पॉइंट क्लियर? नाउ इन 1829, ठीक है, 1829 मैजिस्ट्रेट्स वर एम्पावर्ड टू अवॉर्ड पनिशमेंट अप टू 2 years। कम से कम 2 साल तक की 1829 में मैजिस्ट्रेट्स को ये परमिशन दी गई थी कि आप 2 साल तक की सजा सुना सकते हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर? सो 1829 परमिशन गिवन टू मैजिस्ट्रेट्स दैट दे कैन नाउ अवॉर्ड पनिशमेंट ऑफ अप टू 2 years। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। सेपरेट सदर निजामत अदालत वर सेटअप एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में निजामत अदालत तैयार किया गया, ठीक है।
for the convenience of those people who are coming from Delhi or who are coming from other parts of the upper provinces. नॉर्थ इंडिया के अपर नॉर्थ इंडिया के पार्ट से जितने भी लोग आते थे वो इलाहाबाद के सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत में आते थे, ठीक है, सदर दीवानी अदालत में आते थे ताकि यहाँ पर अपने केसेस की सुनवाई कर सके. एंड ही ऑल्सो रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ पनिशमेंट, हार्शनेस ऑफ द पनिशमेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पर आए, सोशल रिफॉर्म्स की बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड पे, ही वॉज अगेंस्ट दी सती प्रथा. He was outrightly against sati. Now one more system was going on जिनके against ये थे. That is known as the Thagi system. What is Thagi system? This is important for prelims. ये आपका prelims के लिए बहुत important है. So Thagi system was, now a thug means लुटेरा, plunderer. ठीक है. ठग कौन होता है? लुटेरा, plunderer जिसको हम कहते हैं. So according to conventional account of the Thagi, the thugs were fraternity of ritual stranglers who preyed upon travelers during the highways. 19th century के दौरान जो हाईवेज से अब गुजरता था इंसान, ठीक है, उनको वहां पर लूटा जाता था. The people who used to travel through the highways, because highways were the areas which were less frequented, less traveled areas. ठीक है, ज्यादा लोग travel नहीं करते थे. So any traveler who used to cross the highways, they used to loot them, they used to plunder their wealth, and their unsuspecting victims were first deceived into joining the thugs and later at some secluded spot strangled, plundered and buried. तो शुरू में उनको क्या किया जाता था? Starting में they used to cheat the travelers by saying that we know the area where you can have food, have water, and we'll show you the path. और उनको ले जाते थे अपने साथ. They used to carry them with themselves, with their group, and at a secluded spot where there was nobody, they used to loot them, kill them and bury them. तो इस आशा से कि हमें ये कहीं रेस्ट कैफे में या किसी जगह खाने की ढाबा है, खाने को मिल रहा है, वहां पर लेकर जाएंगे, या रास्ता भटक गए तो रास्ता दिखाएंगे, इस प्रिटेक्स्ट में उनको ले जाते थे. और फिर क्या करते थे? अकेली किसी सुनसान जगह में जाकर उनको मार के, उनको लूट कर उनको दफना देते थे. ठीक है. So what he did, he suppressed the system of Thagi, he freed the people from one of their worst fears, and by the end of 1834 Thagi system was completely stopped. So he was instrumental in removing the Thagi system. He was instrumental in banning and abolishing the sati, which is that kind of human sacrifice. Point clear यहाँ तक सभी को? जल्दी से बताएं अगर point clear हो गया है तो. Okay. So now we have the most important Governor General, that is Lord Dalhousie. Lord Dalhousie को तो आप जानते ही होंगे. Doctrine of Lapse, if you have studied, you must remember Lord Dalhousie. ठीक है, everybody knows. Okay. And आपको पता है 2017 में एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में. A question came in 2017 prelims that was about Wood's dispatch. If you have gone through the previous year question paper, अगर आपने previous year question paper पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में. 1854 Wood's dispatch. So who was instrumental in bringing in Wood's dispatch? एजुकेशन रिफॉर्म. वुड्स डिस्पैच जो थे वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे. ठीक है, वो भारत में किसकी परमिशन से आए? लॉर्ड डलहाउसी. हिज परमिशन वाज देयर टू ब्रिंग इन द वुड्स डिस्पैच, टू ब्रिंग इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया. So the accession of Lord Dalhousie inaugurated new chapter in history of British India. Lord Dalhousie जो थे, he was more keen on formalizing education. इनको गुरुकुल सिस्टम पसंद नहीं था. He did not like the गुरुकुल system where you are sitting in open nature, you are studying under a tree, right? He was from an aristocratic family. बहुत ही important, बहुत ही aristocratic modern family से belong करते थे of Scotland. And so he tried to establish university system in India. इसलिए भारत में इन्होंने university system establish करने की बात कही. ठीक है. He was also the president of Board of Trade of British India. And he was considered as one of the greatest Governor General of India. तो इन्होंने कुछ 8 साल रूल किया. 1848 से कुछ 56 तक ही रूल्ड. ठीक है. And he is also known as the maker of modern India. This is the title that is given to him. Maker of modern India. ठीक है. तो सबसे पहले जो पॉइंट है इनके टाइम पीरियड में वो है डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स. So what he did, he took the advantage of every opportunity to acquire territory by peaceful means, ताकि झगड़ा ना हो. ठीक है. So that British government would not enter into any battle, and very peacefully by just
some agreements or policies, they can acquire the territories. बिना झगड़े के आराम से territories को acquire कैसे किया जाए, ये इन्होंने idea सोचा. So he came up with doctrine of lapse policy. What was this policy all about? क्या था इस policy के अंदर? This policy said the East India Company would take over the land of those rulers who do not have any son, biological son, जिनके पास कोई biological child नहीं है, ठीक है, वारिस नहीं है, heir नहीं है, उसकी टेरिटरी को हम हथिया लेंगे. वी आर गोइंग टू ग्रैब द टेरिटरी ऑफ दैट रूलर हु डज नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल किड, ठीक है. एंड इफ यू आर अडॉप्टिंग देन ऑल्सो दैट विल नॉट बी वैलिड. वी नीड बायोलॉजिकल सन. हमें तो भाई बायोलॉजिकल बच्चा देखना है, आपका अपना खून होना चाहिए. अगर अडॉप्ट कर रहे हो तो नहीं मानेंगे. एंड इट शुड बी सन नॉट गर्ल. अगर आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे एज योर फ्यूचर रूलर. ओनली सन शुड बी देयर, ठीक है. So the East India Company was rapidly becoming predominant power in India, and also it was entering into alliances with Indian rulers. So it promised to support them and their heirs, that means the future waris, in return for various concessions. And this type of agreement favored the British, ठीक है. But Dalhousie to expand his power, Dalhousie ने अपने पावर को और एक्सपैंड करने के लिए क्या कहा? He said that according to Hindu law, one can adopt a son in case of no male heir to inherit the property. हिंदू लॉ में ये लिखा हुआ है कि आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो अगर आपका खुद का बेटा नहीं है, ठीक है, आगे वारिस के लिए. द किंग भारता ऑल्सो अडॉप्टेड अ सन. उनके खुद के वारिस तो थे बट कोई केपेबल नहीं था, तो ये अडॉप्टेड, ठीक है, किंग शांतनु. So, but Hindu law says that you should have your own son. If you do not have your own son, you can adopt any other boy. But the question arose, यहाँ पर question आया, ठीक है, that the question was whether a Hindu ruler holding his state subordinate to paramount power means the Britishers. अगर एक हिंदू रूलर किसी ब्रिटिश या बोल सकते हो किसी फॉरेन पावर के अंडर है, तो क्या वो अडॉप्ट कर सकता है बेटे को? If a Hindu ruler is subordinate to a foreign power, can he adopt a son? The answer came from Lord Dalhousie, no. ठीक है, आपका हिंदू लॉ कुछ भी कहता हो, ठीक है, योर हिंदू लॉ कैन से एनीथिंग, आई डोंट केयर. दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड डलहौजी. अकॉर्डिंग टू द पैरामाउंट पावर, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, you are not entitled to adopt a son. Even if you are adopting a son, we will not consider him as your heir or as the future ruler of this state. ठीक है, if you do not have any biological son, straight away we are going to take away your territory. अगर आपका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, स्टेट अवे हम आपके टेरिटरी को ले लेंगे. सच परमिशन वॉज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश. लैप्स हो जाएगी. लैप्स मतलब खत्म, अब आपके शासन में नहीं है वो टेरिटरी, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका पीरियड खत्म. योर पीरियड हैज लैप्स्ड, एंडेड, इफ यू डू नॉट हैव बायोलॉजिकल सन. ठीक है, दिस वॉज नोन एज डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स. इसको बोलते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स. एंड अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, Satara was also annexed in 1848. Jhansi and Nagpur was also snatched away in 1854, because of which 1857 revolt took place. जिसके वजह से 1857 का रिवोल्ट भी हुआ. ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स नाउ? You can look at the mindset of these गवर्नर जनरल. आप इन गवर्नर जनरल के माइंडसेट को देखो. ठीक है, तो हमने पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स. नाउ द रेलवे रिफॉर्म्स. नाउ लेट्स लुक एट द रेलवे रिफॉर्म्स. Dalhousie, he introduced a new system of internal communication in India. He is also known as father of Indian railways. Underline this, write it down, it is important for prelims. ये आपके prelims के लिए काफी important है. ठीक है, तो डलहौजी ने क्या किया, इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी कहा जाता था. एंड डलहौजीज फेमस रेलवे मिनट ऑफ 1853 convinced the home authorities of the need of railways. Now what is this railway minute? आप लोगों को कंपनीज एक्ट के बारे में पता है? Do you know about Companies Act? To regulate the companies, Companies Act is passed in India. सबको पता है, इंडिया में कंपनीज एक्ट के तहत ही कंपनीज बन सकती हैं. ठीक है, so in the Companies Act it is mentioned that you have to note down the minutes of the meetings that are conducted by companies. Companies की जनरल मीटिंग्स होती है ना,
ठीक है, आप सभी को पता है जर्नल मीटिंग्स होती हैं कंपनीज की, तो इन दोज जर्नल मीटिंग्स यू नोट डाउन द मिनट्स. व्हाट इज मिनट्स? मिनट्स मींस इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर रेज्ड इन द जर्नल मीटिंग, दैट इज नोटेड डाउन. आप कंपनी की मीटिंग के दौरान जो इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स पास ऑन करते हो, प्रपोजल सामने रखते हो, ठीक है, उनको नोट डाउन कर लिया जाता है. ठीक है, क्लियर? तो दीज वर द रेलवे मिनट्स, यानी कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की मीटिंग हुई तब इन्होंने रेलवे के बारे में जो प्रपोजल्स रखे उसको रेलवे मिनट कहते हैं. व्हेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट मीटिंग वाज बीइंग कंडक्टेड, सो द प्रपोजल्स व्हिच वर केप्ट फॉरवर्ड बाय डलहौजी वर नोन एज रेलवे मिनट्स. ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे. नाउ रेलवे को कैलकाटा से रानीगंज तक तैयार किया गया. वाई? बिकॉज दिस रूट हैड कोल माइंस. यहाँ पर ना कोल माइंस हुआ करते थे फ्रॉम कैलकाटा टू रानीगंज, एंड कोल्स वर एक्सट्रैक्टेड एंड दे वर सपोर्टेड यूजिंग द रेलवेज. कोयले को एक्सट्रैक्ट करके उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था यूजिंग द रेलवे लाइन्स. ठीक है, सो दीज रेलवे लाइन्स वर नॉट बिल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियन पीपल. नो, ये रेलवे लाइन्स हमारे भले के लिए नहीं बनाई गई थी. इट वॉज फॉर देयर ट्रेड ओनली. ये उनके ट्रेड के लिए था. ठीक है, समझ आ रही है बात सभी को? जल्दी से बताएं अगर समझ आ रही है. ठीक है, चलो, वेरी गुड. तो एक टेस्ट ले ले छोटा सा. शुड आई टेक अ स्मॉल टेस्ट? एवरीबडी इज रेडी? ठीक है, सभी लोग रेडी है ना इस टेस्ट के लिए? चलो, क्वेश्चन नंबर 1. Question is, match the following. Charter Act of 1773, Governor General's Council legislative executive functions segregated, that means divided, यानी कि legislative और executive functions को divide किया. 1784, Governor General of Bengal became Governor General of India. 1833, establishment of Supreme Court. 1853, division between political and commercial function of company. I am giving you 1 minute's time to answer this question. ठीक है, you have 15 seconds time to answer the question now. 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर करो क्वेश्चन. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी. बी मीन्स 1C. ठीक है, यहाँ पर 1 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1773. सेकंड का है आपका डी 1784 डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ कंपनी, BOD एंड COD. BOC एंड COD बोर्ड ऑफ जो आपका जो बोर्ड ऑफ काउंसिल है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो तैयार किया गया था. ठीक है, देन वी हैड योर 3 का है आपका बी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833 चार्टर एक्ट. ठीक है, एंड देन वी हैड 4A 1853 लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फंक्शंस को डिवाइड किया गया. सो बी इज द करेक्ट आंसर. कमिंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. The Legislative Council of some of the provincial states apart from Bombay, Madras, Bengal presidencies were first formed under Government of India Act 1935, Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892 or Government of India Act 1858. You have 15 seconds time to answer. सेवन सेकेंड्स का टाइम बचा है. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. बी इज द करेक्ट आंसर. इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861. ठीक है, सो 1861 का जो एक्ट है इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है मैंने इधर. ठीक है, out of 389, 296 members were to be elected from 11 governors provinces and 4 chief commissioners provinces. Seats allocated to each British province were to be decided among 2 principal communities, Muslims and the general population. Elections to Constituent Assembly for 296 seats allotted to the British Indian provinces were held after independence in 1947. You have 15 seconds time to answer the question. 6 seconds time is left. So 6 सेकंड का टाइम बचा है आपके पास. Correct answer to this question is A. A correct answer है. Why statement 2 is wrong? Because seats were allocated to British province among 3 communities, Muslim, Sikhs and Journal, not 2 communities. Second statement गलत हो जाएगा आपका. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो they were 73 seats.
ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, और ये 1946 में हुआ था, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। Coming on to question number 4. After the revolt of 1857, via the Government of India Act 1858, the Crown had assumed direct responsibility for Government of India. By this act, all legislative, administrative, financial powers came to be concentrated in which of the following? Viceroy and Governor General, Viceroy and his Council, Secretary of State for India and his Council, Viceroy's Council. Correct answer is C, Secretary of State. Viceroy was just a position in this. Main department क्या था जिसके पास सारे functions थे? Direct responsibility was with Secretary of State. Okay. Question number 5. In which year the office of Governor General was created during British India? Very easy question. कौन से year में position तैयार हुई थी? करेक्ट आंसर इज ए। इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड। 6th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यू हैव 15 सेकेंड्स टाइम टू मार्क योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट गवर्नर जनरल अभी पढ़ा है जस्ट हमने, जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड दिस। करेक्ट आंसर क्या है इसमें? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड एंड वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? हु वाज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज? कौन था फादर ऑफ सिविल सर्विसेज? वेरी इजी क्वेश्चन, PYQ से लिया गया है, क्वेश्चन टेकन फ्रॉम PYQ। Okay, over here Himanshu, Abhijit, Nadeem, Victorious, Priya, Dheeraj, Aman, Utkarsh, Shashank, Payal. Very good. Correct answer is C. Warren Hastings laid the foundation of civil service, but Lord Cornwallis reformed it. He modernized it. So he is known as father of civil services in India. Second last question. Which British Governor General founded Public Work Department in India? PWD का जो department है, ये PYQ से question लिया है। किस British Governor General ने establish? 7 सेकेंड्स का टाइम है आप लोगों के पास। यू हैव 7 सेकेंड्स टाइम। करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कमिंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल अबॉलिश्ड स्लेवरी इन इंडिया? भारत में स्लेवरी किसने अबॉलिश की थी? जल्दी से बताएं, हु अबॉलिश्ड द स्लेवरी इन इंडिया? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 में पास हुआ था, जिसके तहत स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था। एंड एट दैट टाइम हु वाज द गवर्नर जनरल? लॉर्ड एलनबरो। Okay, last question for today. Who was the British Governor General when Bombay was designated as a presidency? Lord Hastings, Lord Amherst, Lord Bentinck और Lord Auckland? जल्दी से बताएं, कौन था ब्रिटिश गवर्नर जनरल जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी तैयार किया गया था? When Bombay was converted into a presidency. Correct answer to this question is Lord Hastings. Very good. हिमांशु, अभिजीत, वेरी गुड। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं वो थे गवर्नर जनरल जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी बनाया गया। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। सभी को टेस्ट पसंद आया? ठीक है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल हमारी नेक्स्ट क्लास है एंड वी हैव द नेक्स्ट क्लास एट द सेम टाइम 9 AM पर होगी हमारी क्लास। 11 बजे नहीं, 9 AM पर होगी एंड इट विल बी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स पार्ट 2 एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ 1858। ठीक है, पॉइंट क्लियर? सो टुमारो वी हैव अ क्लास अगेन एट 9 AM। ठीक है, वैसे आज भी क्लास है, टुडे ऑल्सो एट 9 PM वी हैव अ क्लास। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।